गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है टिंकरिंग विद। इफ यू टिंकर विद समथिंग यू मेक सम स्मॉल चेंजेस टू इट इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इट और रिपेयर इट। टिंकरिंग विद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मरम्मत करना, सही करना, ठीक करना, उसे बोला गया है टिंकरिंग विद। सिनोनिम्स है टेम्परिंग, fiddling, adjust, fiddle, puttering, antonyms से destroy, living alone or radical change. Inclusion. Inclusion is the act of making a person or thing part of a group or collection. Inclusion का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, समावेश करना, include करना, उसे बोला गया है inclusion. Synonyms incorporation, integration, addition, include, admission. Antonyms exclusion, banishment, isolation, omission or elimination. Unduly. If you say that something does not happen or is not done unduly, you mean that it does not happen or is not done to an excessive or unnecessary extent. Unduly का मतलब होता है अनावश्यक रूप से ही, अत्यंत या अत्यधिक, बेकार में ही, उसे बोला गया है unduly. Synonyms से excessively, overly, inordinately, unreasonably, unnecessarily, unjustifiably. Antonyms appropriately, lawfully or properly. Discriminating. If you can discriminate between two things, you can recognize that they are different. Discriminating का मतलब होता है किसी तरह की दो वस्तुओं के बीच में पहचान करना, डिफरेंस बताना, या फिर किसी के साथ भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना, उसे बोला गया discriminating. Synonyms से differentiate, distinguish, separate, know or tell. Antonyms से confuse, unite, indiscriminate, join or equal. Garnering. If someone has garnered something useful or valuable, they have gained it or collected it. Garnering का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, एकत्र करना, उसे बोला गया है garnering. Synonyms से collect, gather, amass, accumulate, hoard or reap. Antonyms से disperse, dissipate, distribute or divide. Earmark. If resources such as money are earmarked for a particular purpose, they are reserved for that purpose. Earmarked का मतलब होता है किसी काम के लिए कोई चीज़ निर्धारित करना, किसी वस्तु या व्यक्ति को चुनना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है earmark. Synonyms है set aside, allocate, reserve, assign और appropriate. Antonyms है waste, dismiss और ignore. Divisive. If something that is divisive causes unfriendliness and argument between people. Divisive का मतलब होता है एक दूसरे के विचारों से माफ कीजिएगा मेल ना खाना, बांटने वाला, मतभेदकारी, विभाजक, उसे बोला गया है divisive. Synonyms है factious, alienating, dissentious, quarrelsome और divisional. Antonyms है accordant, accord और accuracy. Reminiscent. If you say that one thing is a reminiscent of another, you mean that it reminds you of it. Reminiscent का मतलब है किसी चीज़ को देख के हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, हमें चीज़ें याद आ रही हो, पुरानी यादें, याद दिलाने वाला, स्मरणशील, उसे बोला गया है reminiscent. अब सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इसके. Allusive, remindful, suggestive और memorized. Antonyms है forgetful, faint or insipid or unreminiscent. Abrogation. The act of abrogating an official or legal cancellation. Abrogation का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी तरह का कोई कानून या नियम है या कोई समझौता है तो उसको कैंसिल करना, उसे बोला गया है abrogation. Synonym से repeal, revocation, cancellation, nullification. Antonym से collaborate, mandate, acceptance और accreditation. Untenable. An argument, theory or position that is untenable cannot be defended successfully against criticism or attack. Untenable का मतलब होता है जिसको सुरक्षित ना रखा जा सके, जो असमर्थनीय हो, मतलब बिल्कुल नाजुक, दुर्बल, जिसको डिफेंस ना किया जा सके, that is called untenable. Synonyms are indefensible, unsustainable, insupportable, unjustifiable or invalid. Antonyms are reasonable, arguable, defensible or sensible. Portray. To show somebody
in a picture to describe something or somebody in a piece of writing. पोर्ट्रे का मतलब होता है हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, या फिर चित्र बनाना तो सभी जानते हैं, चित्र में दर्शाना किसी चीज़ को, उसे बोला गया पोर्ट्रे. सिनोनिम से डिपिक्ट, रिप्रेजेंट, delineate, describe or picture. Antonym से confuse, avoid or distort. Instance. You use for instance to introduce a particular event, situation or person that is an example of what you are talking about. Instance का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक उदाहरण पेश करना, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है इंस्टेंस. सिनोनिम से एग्जाम्पल, illustrations, samples और केस. एंटोनिम से hides, confuse, disarray or disorder. Appeasement. Appeasement means giving people what they want to prevent them from harming you or believing or being angry with you. Appeasement का मतलब होता है किसी से हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं या कोई हमें कोई हानि ना पहुंचाए तो उसका हम फायदा करें कि कोई पर्सन हमें हानि ना पहुंचाए, या शुद्ध हिंदी में बोला जाता है तुष्टिकरण. पॉलिटिक्स में इसका बहुत यूज होता है अपीजमेंट वर्ड का. सिनोनिम से सेटिस्फेक्शन, मिटिगेशन, पैसिफिकेशन और मिटिगेशन. एंटोनिम से अगनी, अफंट, एग्रावेशन और डिसग्रंटलमेंट. वर्डिक्ट, बहुत बार वर्ड रिपीट हो गया है, अब तो याद भी हो गया होगा आपको, काफी बार रिपीट होता है वर्ड, देख लीजिएगा. फ्यूटल, यूज्ड अबाउट एन एक्शन हैविंग नो सक्सेस और यूजलेस. फ्यूटल का मतलब होता है बेकार में ही प्रयत्न करना, जो चीज फालतू में ही हो, बेकार में ही व्यर्थ, उसे बोला गया फ्यूटल. सिनोनिम से यूजलेस, पॉइंटलेस, वेन, इनइफेक्टिव, वर्थलेस. एंटोनिम से प्रोडक्टिव, यूजफुल, फ्रूटफुल, हेल्पफुलनेस और एफिशिएंट. एक्सक्लूजन, ये तो कल ही वर्ड आया था, देख लीजिएगा इसे भी, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लीजिएगा, कल ही हमने डिस्कस किया है एक्सक्लूजन, कल या परसों की वोकैब में आया था वर्ड ये. प्रतिरोध करना, किसी का बहिष्कार करना. स्क्रैपिंग या स्क्रैप. स्क्रैपिंग का मतलब होता है जो कूड़ा करकट होता है या कोई अनावश्यक बात है या अनावश्यक चीज़ें जो अनचाही हो, उससे छुटकारा पाना. दैट इज कॉल्ड स्क्रैपिंग. इफ यू स्क्रैप समथिंग यू गेट रिड ऑफ इट और कैंसल इट. सिनोनिम से डिस्पोजल, डिस्कार्डिंग, डंपिंग, जेटिसन और रिमूवल. एंटोनिम से कंकरिंग, हार्मोनाइजिंग और एक्सेप्टिंग. अप इन आर्म्स, ये वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा. अप इन आर्म्स, प्रोटेस्टिंग एंग्रली अबाउट समथिंग. अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी के कट्टर विरोधी होना, कड़ा विरोध करना, ऑपोजिशन, कड़ा विरोध करना, उसे बोला गया है अप इन आर्म. स्टोक. इफ यू स्टोक समथिंग सच एज अ फीलिंग यू कॉज इट टू बी फेल्ट मोर स्ट्रांगली. स्टोक का मतलब होता है किसी भी चीज का गुस्से का भड़कना, हिंसा का भड़कना या फिर आग का भड़कना, उसे बोला गया है स्टोक. सिनोनिम से फ्यूल, टेंड, फीड, एड फ्यूल टू किंडल और बर्न. एंटोनिम से एक्सटिंग्विश, स्मूथर और अबेट. यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है. सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है एलिनेटिंग. एलिनेटिंग का मतलब होता है डिफरेंसेस का बढ़ जाना, दूर करना या हटाना, उसे बोला गया है एलिनेटिंग. सिनोनिम से डिवाइड, आइसोलेटिंग, एलियन, डिस्टेंस. एंटोनिम से accommodating, conciliatory, dedicating और endearing. Unprecedented. If something is unprecedented, it has never happened before. Unprecedented का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो कि आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला जाता है unprecedented. Synonyms unparalleled, novel, singular, unusual, exceptional और unique. Antonym से traditional, familiar, ordinary, typical और precedented. कॉलिशन. कॉलिशन वर्ड भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा. रिबेलियन, द एक्शन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी और रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रूल्स. रिबेलियन का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना, किसी तरह का राजद्रोह, उसे बोला गया रिबेलियन. सिनोनिम से रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, डिसओबीडियंस. एंटोनिम से ओबीडियंस, पीस, हार्मनी और अलायंस. ब्रोक आउट. इफ समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट ब्रेक्स आउट इट सडनली स्टार्ट्स. ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का भड़क उठना, उसे बोला गया है ब्रोक आउट. अमिड, बहुत बार ये भी वर्ड रिपीट हो चुका है, डेली बेसिस पे होता है ये दूसरे तीसरे दिन, ये भी देख लीजिएगा, इजी वर्ड है. एनाक्रोनिस्ट. एन एनाक्रोनिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनाक्रोनिज्म. एनाक्रोनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अराजकतावादी होता है, किसी तरह का विद्रोह करे, विद्रोहवादी, अराजकतावादी, उसे बोला गया एनाक्रोनिस्ट. सिनोनिम से निहिलिस्ट, निहिलिस्ट, इंसर्जेंट, रेवोल्यूशनरी, रेबल और एजिटेटर. एंटोनिम से अथॉरिटेरियन और परफेक्शनिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट, अ पर्सन हु गोज टू एक्सट्रीम especially in political matters, a supporter or advocates of extreme doctrines or practices.
एक्सट्रीमिस्ट भी वही होता है अतिवादी, चरमपंथी, उग्र विचारों वाला, जो अपने विचारों पर अड़ा रहे, उसे बोला गया एक्सट्रीमिस्ट। सिनोनिम्स है रेडिकल, फैनेटिक, zealot, अल्ट्रा और एक्सट्रीम। एंटोनिम्स है मॉडरेट, कंजर्वेटिव और कन्वेंशनल। अप्स एंड डाउन्स, alternating periods of good and bad fortune, high and low spirits, etc. अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जीवन में जो भी सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसे बोला जाता है अप्स एंड डाउन्स। arguably, you can use arguably when you are starting your opinion or belief as a way of giving more authority to it. arguably का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विवादास्पद हो, विवादों से घिरी हो, विवादास्पद होना, उसे बोला गया arguably। सिनोनिम्स है possibly, debatably, disputably, contestably और plausibly। एंटोनिम्स है unquestionably और incontestably। ओवरसीन, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। इफ समवन इन अथॉरिटी ओवरसीज अ जॉब और एन एक्टिविटी, दे मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपर्ली। ओवरसीन का मतलब होता है किसी भी काम का निरीक्षण करना, निगाह रखना, चौकसी रखना, सावधानी बरतना, किसी काम को करने में उसे बोला गया है ओवरसीन, या फिर काम कैसे हो रहा है उसका पूरी तरह से निरीक्षण करना। सिनोनिम्स है सुपरवाइज्ड, गवर्नड, कमांडेड, रूल्ड और एडमिनिस्ट्रेड। एंटोनिम्स है आंसर और कंसील्ड। कंप्राइजिंग, टू कंसिस्ट ऑफ और टू हैव अ पार्ट्स और मेंबर्स। कंप्राइजिंग का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज मिलकर बनी हो, जुड़कर बना होना, समावेश होना, उसे बोला गया है कंप्राइजिंग। सिनोनिम्स है इंक्लूडिंग, कंटेनिंग, एनसर्कलिंग, इंक्लूड और इन्वॉल्विंग। एंटोनिम्स है बेसिक, ब्रीफ और कॉम्पैक्ट। ओवरराइड, override, to use your authority to reject somebody's decision, order or etc. या overrule से भी आप इस वर्ड को समझ सकते हो। देखो यहाँ पे सिनोनिम्स भी है overrule, reverse, cancel, revoke और overturn। एंटोनिम्स accept, assume और call। नेसेट, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड तो नहीं है, वर्ड नहीं है ये जो इजराइल है उसकी जो एक विधानसभा का एक सदन होता है उसे बोला गया है नेसेट। तो ये वैसे ही जीएस के लिए, जीके के लिए पढ़ लीजिएगा, वैसे ये मैंने ले लिया था वर्ड नेसेट। कंसेंसस, कंसेंसस इज जनरल एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। कंसेंसस का मतलब होता है लोगों के बीच में आम सहमति होना, सर्वसम्मति होना, उसे बोला गया है कंसेंसस। सिनोनिम्स एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनिटी और कंकरेंस। एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। Polarizing, to cause something, especially something that contains different people or opinion, to divide into two completely opposing groups. Polarizing का मतलब होता है दो अलग अलग भागों में, दो अलग अलग समूहों में बट जाना, उसे बोला गया polarizing। Synonyms है divide, by, split, oppose, break और polarization। Antonyms allocate, allot, apportion और assemble। ये लास्ट वर्ड है आज का abandon, forsaken by owner और keeper। abandon का मतलब होता है किसी को त्यागना, छोड़ देना, छोड़ के चला जाना, परित्यक्त, उसे बोला गया abandon। Synonyms है deserted, forsaken, left, rejected। Antonyms है inhabited, rescued, recovered और saved। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ एक वर्ड्स आपने आज भी नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज रिपीट भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।